Welcome back. Today we will discuss another very important topic from the chapter Chemical Control and Coordination, and that's all about adrenal gland. We'll discuss what is adrenal gland, what are the different hormones, their function, and the diseases that are associated with this special gland that we call as the adrenal gland. Let us discuss the things. The first point you will keep in mind with regard to adrenal gland is that adrenal gland सिंपली क्या होता है बेटा, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जिसकी लोकेशन कहाँ पर होती है. It is located on the top of the kidneys. For example, if I will make these are the, for example, the two kidneys, and on the top of the kidneys there is a special endocrine gland, and that gland is actually called as a adrenal gland. So this is the adrenal gland. That is why this adrenal gland is also called as a suprarenalis. Suprarenalis means it's a gland which is located on the top of the kidneys. The first point. Second point, if we will discuss that this adrenal gland, it is also called as the 4S gland. It is also called as the 4S gland. Now, what does this 4S mean? First S means it is related with, for example, sugar. It is related with sugar. Second S means salt. Third S, it means sex. And fourth one means what? Fourth S means beta citrus. That means it is an endocrine gland that is associated with these 4S conditions. If we talk about the sugar, अगर हम बेटा शुगर की बात करें, आपका एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये एक स्पेशल हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम बेटा बोलते हैं कॉर्टिसोल. दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल क्या करता है? ये कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को. ये कॉर्टिसोल क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. ये एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है. सेम इज द केस अगर मैं साल्ट की बात करूं, साल्ट रेगुलेशन के लिए, आई मीन टू से सोडियम आयन्स की लेवल को बॉडी में मेंटेन करने के लिए एक स्पेशल हार्मोन होता है, और उस हार्मोन को हम बेटा क्या बोलते हैं? दैट इज बेटा कॉल्ड एज एल्डोस्टेरोन. दैट इज व्हाई this aldosterone, it is also called as the salt retaining hormone. Then if we look towards the sex, for that we have special types of the hormones, those we call as the sex corticoids. Sex corticoids, like that of the, for example, if I talk about the testosterone, if I talk about the estrogens. Okay, so these are the hormones which are related with the development of secondary sexual characters in both the genders. That means in both male as well as in female. If we will look towards another S, which means beta citrus. Citrus, another hormone is secreted by this adrenal gland, and that hormone is actually called as the epinephrine. That is beta called as the epinephrine. Epinephrine is also called as the adrenaline, and adrenaline or epinephrine is related with different citrus conditions. It is also related with different emergency conditions. So that is why this adrenal gland is called as the beta 4S gland. Next point. Another point is that this gland, so far we have discussed the weight of this gland is 4 grams. These are normally yellowish colored, which are present on the top of the kidneys. Another point with regard to adrenal gland is that this adrenal gland is also called as the 3F gland. It is also called as the beta 3F gland. Now, what does this 3F mean? The first F means what? First F means beta fear. That means it gets activated during the fear conditions. Second is what we call as a fight. Second is beta fight. Fight means it gets activated when we fight with each other. Okay. Number third is what? Number third is beta flight. So fight, flight and fear. These are the 3F conditions during which this special type of endocrine gland gets activated, and that endocrine gland is called the adrenal gland. Okay. Then if we will look towards this adrenal gland is actually divided into, if I write down here adrenal gland, this adrenal gland is actually divided into two parts. First we have this cortex, that is beta called as a cortex. This is beta called as a cortex, and then we have this what we call as a medulla. If you will differentiate the two parts of the adrenal gland,
The first difference between the two is that cortex makes how much percentage? It makes 85% of the adrenal gland. If we look towards the medulla forms how much percent? It forms 25% of the adrenal gland. So this is the first difference. Second difference is with regard to their origin. अगर हम बात करें बेटा कॉर्टेक्स की, कॉर्टेक्स is actually derived from a superficial germ layer, and that germ layer is what called? That germ layer is called beta mesoderm. And if we will look towards this medulla is not derived from mesoderm, rather it is derived from the outer germ layer, and that outer germ layer is called ectoderm. So we can say then this adrenal gland is ectomesodermal in origin. It is ectomesodermal in origin. This is very important point. Okay. Number third difference is that if we will look towards this cortex part of the adrenal gland is that part which secretes certain important hormones. Okay. For example, if I talk about the this what we call the mineralocorticoids. Okay, later on we'll discuss. Then we will glucocorticoids. Okay, and then we have it the sex corticoids. These are the different hormones that are secreted by the cortex part of the adrenal gland. If we look towards मेडुला वो पार्ट होता है बेटा एड्रेनल ग्लैंड का जो सिक्रेट करता है दो ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स. एक को हम बेटा बोलते हैं क्या? वन इज बेटा कॉल्ड एज एपिनेफ्रीन, एंड सेकंड इज कॉल्ड बेटा नॉरएपिनेफ्रीन. द सेकंड वन इज कॉल्ड बेटा नॉरएपिनेफ्रीन. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड एंड मेडुला ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड. Again I will repeat down, okay, quickly, that this makes 85% of the adrenal gland, it makes 25% of the adrenal gland. It is derived from a special germ layer, and that germ layer is called mesoderm, and it is derived from ectoderm. Actually these mesoderm and ectoderm along with the endoderm, these are actually the three germ layers in the body, and they are formed during the early embryonic development by a special process, and that process, you know what is called? That process is better called as a gastrulation. That is called a gastrulation. So gastrulation is a process that is responsible for the formation of all the three germ layers. Normally we have this what we call as the outer germ layer, that is called ectoderm. Then we have the middle layer, that is better called as this what we call as the mesoderm. And then we have the inner layer, and that inner layer is what called, that is better called as the endoderm. So this process is actually called as a gastrulation. Out of these three, एक्टोडर्म से डिराइव होता है आपका बेटा मेडुला, और आपके मेसोडर्म से क्या बनता है? आपका कॉर्टेक्स. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then we will discuss this adrenal cortex in detail. See, the first point which I have mentioned here is that it is the outer part. ये बेटा outer part होता है जो light yellow colored होता है, और जो originate होता है किस germ layer से? mesoderm से, जो मैंने वहाँ discuss किया. ठीक है. उसके बाद ये कितने परसेंटेज बनाता है बेटा? It forms 85% of the adrenal gland that I have discussed here. Then if I talk about the adrenal cortex, this is actually formed of three layers. The first one is called zona glomerulosa. This is the first layer of the adrenal cortex, and it is what? It is the ये होता है बेटा outer part of the cortex. Okay, and ये जो पार्ट होता है इस एड्रेनल कॉर्टेक्स का, ये बेसिकली सिक्रेट करता है कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स. उस हार्मोन को हम बेटा क्या बोलते हैं? दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड. मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होता है, जो ये पार्ट एड्रेनल कॉर्टेक्स का प्रोड्यूस करता है, उसको हम सर क्या बोलते हैं? दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज एल्डोस्टेरोन. Okay, what I am telling you that adrenal cortex is actually formed of three layers. The outer layer is called zona glomerulosa, and it secretes special hormones, and those hormones are called mineralocorticoids. As the name indicates, it is related with minerals, and which mineral mainly? For example, sodium and beta potassium. Okay, so the main mineralocorticoid is, that is beta called the aldosterone.
which is also called as the salt. इसका दूसरा नाम है बेटा, it is also called as the salt retaining hormone. इसको हम बेटा बोलते हैं salt retaining hormone. अब अगर मैं बात करूं बेटा इस ये जो आपके पास ये एल्डोस्टेरॉन होता है, इसका सर क्या काम होता है? ठीक है बेटा, इस स्लाइड में हम वो चीज डिस्कस करेंगे. देखिए, as the name indicates, as the beta name indicates, it is called a salt retaining hormone. That means it will help in the retention of what? It will help in the retention of this what we call as the salts in the body. And especially कौन सा वाला salt है? Especially बेटा जो आपके पास सोडियम आयन होता है, जो सोडियम आयन्स होते हैं. That is why I have mentioned at the first function that ये जो आपके पास एल्डोस्टेरॉन होता है, ये किसको मेंटेन करता है बेटा? हाइपर natremia को. What does that mean? Hypernatremia. Hypernatremia is a term that is related with high levels of sodium ions in the blood. That means that is why it is called a salt retaining hormone. So it maintains the high concentration of sodium ions in the blood, and this condition is actually what called? This is actually called as the this is better called as the hypernatremia. Natremia. This is better called as the hypernatremia. So this is the first function that is performed by the aldosterone. The second function that is performed by this aldosterone is that it maintains hypokalemia. These are the terms you have to remember. Hypokalemia. What does the hypokalemia mean? Hypokalemia. Hypo means what? One is hyper, another is hypo. Hyper का मतलब ये हुआ बेटा काफी ज्यादा, नॉर्मल लेवल से काफी ज्यादा. हाइपो का मतलब क्या हुआ? हाइपो का मतलब ये हुआ कम. ठीक है, नॉर्मल से कम. तो इट मेंटेन्स हाइपोकैलेमिया. हाइपोकैलेमिया का मतलब ये हुआ कि ये मेंटेन करता है लो लेवल्स ऑफ पोटेशियम आयन्स. So that is what I have write down, that is low potassium levels in the blood. So there are two important functions performed by the aldosterone. One is that it maintains the high concentration of sodium ions in the blood, and for that we have a special term, and that term is called beta hypernatremia. Another function of this is that it maintains hypokalemia. Hypokalemia is a term that means low levels of potassium ions in the blood. Okay, now another function of this is that now we have to see how it maintains high level of sodium ions in the blood. See, if I talk about the kidney, in the kidney we have a special structure. That special structure is beta called as a nephron. नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मालफिजन बॉडी होती है. मालफिजन बॉडी में is actually made up of two parts. One is called beta this Bowman's capsule, और उस Bowman's capsule में क्या होता है? एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, जिसको हम नॉर्मली बेटा बोलते हैं glomerulus. Then another part of the nephron is called the proximal convoluted tubule. Then we have the loop of Henle. Loop of Henle में बेटा एक होता है आपका descending limb और दूसरा होता है बेटा ascending limb. Then we have the DCT, distal convoluted tubule, and then we have the collecting duct, which is also called as a collecting tubule. Now, if I talk about the nephron, nephron actually contains what? It contains actually the nephric filtrate. It contains बेटा nephric filtrate. इसमें होता है बेटा इन ये जो नेफ्रॉन के सेगमेंट्स होते हैं, इनमें बेटा nephric filtrate होता है. अगर मैं बात करूं ये nephric filtrate किसका बना हुआ होता है? इसमें कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं और बेटा कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं. तो ये यूजफुल सब्सटेंस फॉर एग्जांपल बेटा सोडियम आयन. सोडियम आयन की क्या होती है बेटा? इसकी बेटा रीएब्जॉर्बिशन होती है. रीएब्जॉर्बिशन का मतलब क्या हुआ? रीएब्जॉर्बिशन एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस आपके नेफ्रॉन में होते हैं उनको पुश किया जाता है वापस इनटू द ब्लड. दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज रीएब्जॉर्बिशन. सो दैट इज व्हाट एल्डोस्टेरॉन इज डूइंग हियर. इट इज डूइंग व्हाट? सो इट एक्ट्स ऑन द रेनल ट्यूबुल्स. रेनल ट्यूबुल्स का मतलब ये हुआ नेफ्रॉन के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन पे एक्ट करेगा एंड स्टिमुलेट्स व्हाट? सी, दिस इज द मेन टर्म, रीएब्जॉर्बिशन. सो रीएब्जॉर्बिशन मीन्स अ मैकेनिज्म दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द नेफ्रिक फिल्ट्रेट बैक इनटू द ब्लड. दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ रीएब्जॉर्बिशन. सो ये रीएब्जॉर्ब किस को करता है? सोडियम आयनों को एंड दिस व्हाट वी कॉल एज अ वाटर. ठीक है. So when this sodium and water will be reabsorbed, means the concentration of this sodium ion and water, it will rise in the blood.
That is the case of this what we call the hypernatremia. But what it will do, it will also simultaneously increase, it will increase the excretion of what, it will increase the excretion of these ions, potassium ions as well as beta the phosphate ions. ठीक है बेटा, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये एल्डोस्टेरॉन जो है ये कैसे सोडियम लेवल को हाई करता है ब्लड में, आपका आंसर ये आना चाहिए कि ये बेटा क्या करता है, ये इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्बिशन ऑफ सोडियम आयंस अलोंग विद दैट ऑफ द दिस व्हाट वी कॉल एज अ वाटर। अगर मैं ये आपको बोलूं क्वेश्चन कि ये कैसे मेंटेन करता है हाइपोकैलेमिया को, सो हाइपोकैलेमिया का मतलब ये हुआ जब ब्लड के अंदर पोटेशियम आयंस जो है उनकी लेवल कम होगी, तो कैसे ये करेगा, आप बोलोगे आपका आंसर ये आना चाहिए कि सर ये क्या करता है, इस ये इंक्रीज करता है एक्सक्रीशन ऑफ दिस पोटेशियम आयंस एंड द फॉस्फेट आयंस। ओके, सो दिस इज वेरी इजी। Now another function, it also maintains BP. BP का मतलब ये हुआ blood pressure. It also maintains the balance of these electrolytes and what we call as the body fluids that we have discussed. Now if we look towards this what we call as the aldosterone. Aldosterone से कुछ two important diseases बेटा associated है. One is called, this is most important, one is called बेटा Addison's disease and another is called Cohen's syndrome. This is बेटा called the Cohen's syndrome. Okay बेटा, if we talk about the what is Addison's syndrome or Addison's disease. Addison's disease is simply caused by the hyposecretion of this aldosterone. अगर एड्रेनल ग्लैंड ने इस एल्डोस्टेरॉन को प्रोड्यूस किया इन द लीस्ट अमाउंट्स, नॉर्मल से कम प्रोड्यूस किया, सो दैट इज बेटा कॉल्ड एज द हाइपोसेक्रेशन that will lead to a disease and that disease is called बेटा Addison's disease. तो अब क्या होगा बेटा, अगर आपका एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो कॉमन सेंस है सोडियम की रीअब्जॉर्बिशन ज्यादा नहीं होगी, रादर क्या होगा बेटा, ये एक्सक्रीशन होगी इनकी ज्यादा, जिससे लॉस हो जाएगा बेटा क्या, सोडियम आयंस। लेकिन इंटर्न क्या होगा, पोटेशियम आयंस और फॉस्फेट आयंस जो है उनकी कंसंट्रेशन बेटा बढ़ेगी हमारे ब्लड के अंदर। सो एडिसन्स डिजीज इज अ डिजीज दैट इज कॉज्ड ड्यू टू हाइपोसेक्रेशन ऑफ द एल्डोस्टेरॉन एंड दिस एडिसन्स डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव लॉस ऑफ सोडियम आयंस एंड बेटा वाटर इन द यूरिन। और ये जो पेशेंट्स होंगे, हाउ यू विल आइडेंटिफाई अ पेशेंट दैट इज सफरिंग फ्रॉम दिस एडिसन्स डिजीज, ब्रॉन्ज लाइक स्किन कलरेशन विल अपीयर, नॉसिया हो जाएगा। व्हाट डज नॉसिया मीन, डिस्कम्फर्ट फीलिंग बिफोर वोमिटिंग, वोमिटिंग से पहले यू विल फील कि अब मुझे वोमिटिंग आएगी, उसी वाली कंडीशन को हम बेटा बोलते हैं नॉसिया। देन वी हैव द वोमिटिंग, डायरिया एंड बेटा लो बीपी, बिकॉज हमने ऊपर पढ़ा था ये मेंटेन करता है बेटा बीपी को, अगर इसकी कंसंट्रेशन कम है तो कॉमन सेंस है ये जो ब्लड प्रेशर होगा बेटा वो काफी कम होगा। ठीक है बेटा, सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज एडिसन्स डिजीज। देन इफ आई टॉक अबाउट दिस syndrome, this is called beta Cohen's syndrome. Okay beta, this Cohen's syndrome is caused due to, now it was caused due to hyposecretion, so it is caused due to hypersecretion. So hypersecretion of the aldosterone causes another very important disease and that disease is beta called as the Cohen's syndrome and this is characterized by, what does hyper का मतलब ये हुआ काफी ज्यादा excessive quantities में आपका एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस होगा, फिर वो क्या करेगा, वो ज्यादा रीअब्जॉर्बिशन करेगा, जितना वो ज्यादा रीअब्जॉर्बिशन करेगा किस चीज की, एक तो बेटा सोडियम आयन की और बेटा इस वाटर की, तो दैट विल कॉज द हाइपरनेट्रेमिया। और साथ साथ क्या होगा बेटा, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया हमने ऊपर डिस्कस किया, दैट मींस पोटेशियम आयंस और फॉस्फेट आयंस की इंक्रीज हो जाएगी एक्सक्रीशन, एज अ रिजल्ट वो बॉडी से बाहर किए जाएंगे। ठीक है, एंड हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का मतलब ये हुआ, नॉर्मल हमने पढ़ा था, इसका काम ये है कि ये बीपी को मेंटेन करता है। ठीक है, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगी तो कॉमन सेंस से हाइपरटेंशन होगा, अगर इसकी हाइपोसेक्रेशन होगी तो यहां पर क्या होगा बेटा, इट विल कॉज द हाइपो, दिस इज कॉल्ड बेटा हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब ये हुआ कि ब्लड में जो प्रेशर है वो बेटा कम होगा। ठीक है बेटा, सो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेट अस मूव अहेड, वेट फॉर अ व्हाइल। ओके बेटा, नाउ अनदर पार्ट ऑफ दिस
adrenal gland. Okay beta, that we call as a cortex. Another part is that is called beta zona fasciculata, that is beta called as a zona fasciculata. Now zona fasciculata is what? It is the middle part of the cortex, and it also secretes special types of the hormones. Those hormones are actually called as the glucocorticoids. जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है वो होता है बेटा आपका यही कॉर्टिसोल, दैट इज बेटा कॉल्ड एज कॉर्टिसोल. बिसाइड दिस कॉर्टिसोल देयर इज आल्सो कॉर्टिकोस्टेरोन, लेकिन मेन यही होता है, यही बेटा आपका मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है. ठीक है बेटा. अब अगर हम इसके इस कॉर्टिसोल की बात करें, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, इट परफॉर्म्स सर्टेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस. लेट अस डिस्कस दोस दीज. द फर्स्ट इज दैट इट इज मेंट फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बेटा ग्लूको. ग्लूको इज रिलेटेड विद ग्लूकोज, ग्लूकोज इज रिलेटेड विद व्हाट? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. और इसका मेन काम बेटा ये होता है कि ये ब्लड में किसकी लेवल को इंक्रीज करता है? ग्लूकोज के लेवल को. लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा ये जो कॉर्टिसोल है बेटा ये कैसे ग्लूकोज की लेवल को इंक्रीज करता है ब्लड में. उसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होती है, उस प्रोसेस को हम बेटा बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. दैट इज बेटा कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस. सी दीज आर डिफरेंट terms related with each other. For example, we have the glycogenesis. Glycogenesis means formation of glycogen from glucose. We have the glycogenolysis. Glycogenolysis means conversion of glycogen back into the glucose. Then we have this third term that is beta called the gluconeogenesis. Gluconeogenesis बेटा एक ऐसी प्रोसेस होती है जो नॉर्मली किन सेल्स में होती है? जो बेटा हेपेटोसाइट्स, दोज वी कॉल्ड एज लिवर सेल्स, लिवर सेल्स के अंदर होती है. और इस ग्लूकोनियोजेनेसिस का काम क्या होता है? व्हाट इज इट्स मेन एम? इसका काम बेटा ये होता है कि जैसे हमारे पास प्रोटीन्स है या जैसे हमारे पास बेटा फैट्स है जिनको हम बेटा बोलते हैं दिस आर कॉल्ड नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स. तो प्रोटीन्स है, फैट्स है. फॉर एग्जांपल मैं बात करूं बेटा फॉर एग्जांपल पायरीवेट की जो नॉर्मली आपके ग्लूकोज से बनता है, अगर यही सारे मॉलिक्यूल्स वापस कन्वर्ट होते हैं बेटा ग्लूकोज में, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड gluconeogenesis. So the conversion of protein back into the glucose is called gluconeogenesis. We can say the conversion of fat into glucose is called. Fat एक्चुअल में क्या होता है? फैट इज एक्चुअली ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स. अगर वो ग्लाइसरॉल कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, इट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस. अगर आपके पास पायरीवेट है, एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है जो आपके ग्लूकोज से ही बनता है थ्रू ए प्रोसेस, दैट प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस. ओके बेटा. अगर ये पायरीवेट फिर वापस कन्वर्ट होगा बेटा ग्लूकोज में, दिस इज कॉल्ड बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो ये कॉर्टिसोल जो है ये इसी प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, दैट प्रोसेस कॉल्ड बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस. ये प्रोटीन फैट पायरीवेट को कन्वर्ट करता है बैक इनटू द ग्लूकोज. एज अ रिजल्ट ग्लूकोज की लेवल जो है वो बेटा ब्लड के अंदर राइज होती है. सो दिस वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके. सो वही मैंने लिखा है यहाँ पर, इट इंक्रीज द रेट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, दैट इज फॉर एग्जांपल प्रोटीन को कन्वर्ट करना इनटू शुगर में इन अ स्पेशल cell that is beta called as a liver. This cortisol it is also responsible for lipolysis, that is breakdown of the fat. तो ये फैट को हेल्प करता है इन इट इज ब्रेकडाउन. जब फैट जो होता है ना फैट की अगर मैं बात करूं, मोस्ट एबंडेंट फैट जो हमारे बॉडी में होता है बेटा that is actually called as a tag. That is called a tag. Tag का मतलब क्या हुआ? Tri-acyl, ACY-acyl glycerol, GLYCEROL, ट्राईएसाइल ग्लाइसरॉल. ओके बेटा. तो जब इसकी बेटा लिपोलाइसिस होगी मींस ये ब्रेक होगा. जब ये बेटा ब्रेक होगा तो अगर मैं बात करूं ये टैग किसका बना होता है? T मींस ट्राई, इट मींस इट इज मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड्स दैट आर लिंक्ड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरॉल. अगर अब इसकी ब्रेक डाउन होती है, लिपोलाइसिस होती है, तो क्या होगा? यहां से निकलेगा बेटा फैटी एसिड प्लस निकलेगा बेटा ग्लाइसरॉल. सो फिर ये ग्लाइसरॉल जो है इट कैन अंडरगो फॉर द ग्लूकोनियोजेनेसिस, दैट मींस इट विल बी कन्वर्टेड बैक इनटू द ग्लूकोज. एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ ग्लूकोज विल राइज इन द ब्लड एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस. देन अनदर इट आल्सो इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोटियोलाइसिस. प्रोटियोलाइसिस का मतलब क्या हुआ? एज द नेम इंडिकेट्स, हमारे पास जो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी होते हैं जिनको बेटा बोलते हैं प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी.
These proteins are actually made up of अमाइनो एसिड्स। अब जब प्रोटीन की क्या हो जाएगी, जब ये बेटा सुप्लिट हो जाएगा, जब ये सुप्लिट हो जाएगा, जब इसकी सुप्लिटिंग हो जाएगी, तो यहां से क्या निकलेंगे बेटा, अमाइनो एसिड्स। और कुछ अमाइनो एसिड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कन्वर्ट किए जाते हैं किसमें बेटा, शुगर में। ठीक है बेटा, एज ए रिजल्ट ग्लूकोज की लेवल फिर से बढ़ेगी। सो दैट इज व्हाई दिस कोर्टिसोल इज रिस्पांसिबल फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स, एंड सम ऑफ द अमाइनो एसिड्स दैट वी कॉल द ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स, दे कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू द ग्लूकोज। एज ए रिजल्ट द लेवल ऑफ ग्लूकोज विल राइज इन द ब्लड। Then another very important role of these hormone is, that's cortisol, is that it is anti-inflammatory and it is anti-allergic in action. इसका मतलब ये हुआ, ये it acts against the allergy and it also acts against the inflammation. Inflammation means swelling of a particular body organ. Then it is also used in the inflammation of the joints and that is called बेटा arthritis. Arthritis बेटा वो डिजीज होती है जिसमें joints जो होते हैं बेटा वो इन्फ्लेमेशन उनकी हो जाती है, स्वेलिंग होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम कॉर्टिसोल को यूज करते हैं। ठीक है बेटा, इट आल्सो स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्पेशल टाइप्स ऑफ द सेल्स, दोज वी कॉल एज रेड ब्लड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी दैट वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स। ठीक है, दैट वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स, दैट इज बेटा कॉल्ड एज दिस व्हाट वी कॉल एज एरिथ्रोपोइएसिस। एरिथ्रो मींस एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट इज अनदर नेम ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो ये कॉर्टिसोल स्टिमुलेट करता है किस प्रोसेस को, एरिथ्रोपोइएसिस को। एरिथ्रोपोइएसिस का मतलब ये हुआ आरबीसीज फॉर्मेशन। नाउ अगर हम बात करें, ये जो ज़ूना फेसिकुलेटा है जैसे ये कॉर्टिसोल है, अगर बेटा इसकी हाइपर सिक्रेशन होती है, मींस अगर ये एक्सेसिव क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो गया, इट विल कॉज ए सिंड्रोम दैट इज कॉल्ड कशिंग सिंड्रोम। दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम क्या होता है बेटा, इसमें कॉमन सेंस है, अगर हाइपर सिक्रेशन होती है मींस कॉर्टिसोल ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जब कॉर्टिसोल ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ग्लूकोज की लेवल जो है वो बेटा ब्लड के अंदर इंक्रीज होगी, तो वही एक इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है इस कशिंग सिंड्रोम का। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई शुगर लेवल। अब जब ब्लड के अंदर बेटा शुगर लेवल बढ़ गई, मतलब नॉर्मल से काफी ज्यादा बढ़ गई, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी wants to get rid of this excessive glucose, तो ये इस ब्लड को कहां पर भेजती है बेटा, किडनीज के अंदर। किडनीज में इसकी फिल्ट्रेशन होती है, एज ए रिजल्ट जो यूरिन निकलता है, जो बेटा इस पेशेंट का यूरिन निकलता है, उसके यूरिन में क्या होता है बेटा, ग्लूकोज। जब यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसके लिए एक टर्म यूज करेंगे, दैट इज बेटा कॉल्ड एज ग्लाइकोसीरिया। दैट इज बेटा कॉल्ड एज ग्लाइकोसीरिया और समटाइम्स यू कैन से ग्लाइकोसूरिया। ठीक है बेटा, तो ग्लाइकोसीरिया क्या होती है, द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। ठीक है बेटा, और एक चीज क्या होगी कि प्लाज्मा के अंदर जो नॉन सेल्यूलर पार्ट ऑफ द ब्लड होता है, दैट इज बेटा कॉल्ड एज प्लाज्मा, उसके अंदर सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और साथ साथ जो पोटेशियम आयन्स है उनकी कंसंट्रेशन कम होगी आपके प्लाज्मा में। ब्लड प्रेशर जो है बेटा वो इंक्रीज होगा और ओबेसिटी होगी। ओबेसिटी का मतलब क्या हुआ कि ये जो पेशेंट है ये गेन करेगा एक्सेसिव वेट बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट। ओके बेटा, सो दैट इज बेटा कॉल्ड ओबेसिटी, सबको बताएं। उसके बाद थर्ड पार्ट ऑफ दिस कॉर्टेक्स इज एक्चुअली कॉल्ड एज ज़ूना रेटिकुलेटा। ये तो काफी इजी है। ज़ूना रेटिकुलेटा जो होता है ना, ये प्रोड्यूस करता है दीज स्पेशल टाइप्स ऑफ द सेक्स हार्मोन्स लाइक दैट ऑफ द एंड्रोजेनस एंड लाइक दैट ऑफ द एस्ट्रोजेनस। अब इसमें जो मेन हार्मोन्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बेटा एस्ट्रोजन की बात करूं जो फीमेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरॉन की मैं बात करूं तो ये भी फीमेल में बेटा प्रोड्यूस होता है। ये क्या करते हैं बेटा, इनका काम क्या होता है, इनका काम बेटा ये होता है कि ये स्टिमुलेट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ दिस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बेटा, आपके पास ये बेटा आपके पास फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरॉन, PROGESTERON प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन इज एक्चुअली ए सेक्स हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द फीमेल, एंड दिस प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है बेटा, ये फीमेल के अंदर कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर।
कैरेक्टर्स। सेम इज द केस अगर मैं बात करूं बेटा मेल की, मेल में प्रोड्यूस होता है मेनली टेस्टोस्टेरोन जो मेन एंड्रोजन होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ दिस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है बेटा। वही मैंने इधर डाला है कि एस्ट्रोजन जो होते हैं वो फीमेल के अंदर क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं, लाइक दैट ऑफ द ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, बिगिनिंग ऑफ ए स्पेशल साइकिल एंड दैट साइकिल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये तो काफी इजी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मेल के अंदर अगर मैं बात करूं जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको बेटा बोलते हैं टेस्टीज। तो टेस्टीज एक्चुअल में प्रोड्यूस करते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम बेटा बोलते हैं लेडिक सेल्स। और अगर मैं बात करूं फीमेल की, फीमेल के अंदर ओवरीज होते हैं, ओवरीज के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है उसको बेटा बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के बाहर कुछ फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, वो फॉलिकुलर सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस द व्हाट वी कॉल एज अ प्रोजेस्टेरॉन। और वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सो इन शॉर्ट वी कैन say these sex hormones are produced both by the primary sex organs as well as by this special type of gland that is beta called as this what we call as adrenal gland। अगर बेटा हाइपर सिक्रेशन हो जाती है किसकी बेटा, मतलब इन फीमेल सेक्स हार्मोन्स की, तो उससे क्या होगा बेटा, उससे एक डिजीज होगी दैट इज बेटा कॉल्ड एज विरिलिज्म। विरिलिज्म में क्या होता है बेटा कि मेल लाइक कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं किसमें बेटा, फीमेल में। और अगर मेल में ये चीज होती है मतलब हाइपर सिक्रेशन अगर मेल के अंदर होती है तो उसमें क्या, उसमें कौन सी डिजीज होगी, कौन सी, दैट इज कॉल्ड गायनिकोमैस्टिया। गायनिकोमैस्टिया का मतलब ये हुआ मेल के अंदर मतलब ये जो ब्रेस्ट्स है बेटा वो एनलार्ज होंगे। So that's very easy. These are very important. These are very easy. This part is very easy. That is called beta this zona reticulata. Okay बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा another part जो now this is very important. Another part of this adrenal gland is called beta medulla. We have already discussed these points. We'll directly move towards the hormones. पहले फिर भी इसको ये central part होता है जो बेटा ectodermal in origin होता है। इस एड्रेनल मेडुला में कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं बेटा जिनको हम बेटा बोलते हैं क्रोमैफिन सेल्स। ये क्रोमैफिन सेल्स जो होते हैं बेटा ये टू इंपॉर्टेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। वन इज कॉल्ड बेटा एड्रेनलिन एंड सेकंड इज बेटा कॉल्ड एज नॉरएड्रेनलिन। ओके बेटा, ये दोनों हार्मोन जो होते हैं बेटा ये डिराइव होते हैं कैटेकोल से, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज कैटेकोल अमाइनस। इनको बेटा बोलते हैं कैटेकोल अमाइनस। ये कैटेकोल क्या होता है, एक बेंजीन डायोल होता है जिसमें एक बेंजीन रिंग होती है, एक बेंजीन रिंग होती है और उसमें क्या होते हैं बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय कैटेकोल? सो कैटेकोल इज सिंपली अ बेंजीन डायोल, ओके, जिसमें बेटा एक बेंजीन रिंग होती है, उस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होते हैं बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए इनको हम बेटा क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाई दिस एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन दे आर आल्सो कॉल्ड एज कैटेकोल अमाइनस। आल्सो कॉल्ड एज, ये जो आपके पास दोनों हार्मोन्स होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज द 3F हार्मोन्स। वी हैव डिस्कस्ड 3F मींस फाइट, फियर एंड फ्लाइट, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। देखिए फंक्शंस की अगर मैं बात करूं बेटा ये एड्रेनलिन हो नॉरएड्रेनलिन हो ये फंक्शंस बेटा परफॉर्म करते हैं सेम, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल एड्रेनलिन जो होता है उसका दूसरा नाम है बेटा एपिनेफ्रिन, और ये एपिनेफ्रिन कितने परसेंट बनाता है एड्रेनल मेडुला का, 80%। सो इट फॉर्म्स 80%, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। व्हाइल एज इफ वी टॉक अबाउट द नॉरएड्रेनलिन इट इज आल्सो कॉल्ड द नॉरएपिनेफ्रिन, और ये कितने परसेंटेज बनाता है बेटा 20% ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। Then another difference is that if I talk about the adrenaline which is also called the epinephrine, it is produced only by the adrenal gland, while as if we talk about the noradrenaline is produced first by, for example, to some extent मतलब in least concentration it is produced by adrenal gland, but in majority of the concentrations that it is produced by this special type of nervous system that is beta called as a sympathetic nervous system. So that is most important. तो क्या मैं बोल रहा हूँ बेटा जो आपके पास एड्रेनलिन है और नॉरएड्रेनलिन है, एड्रेनलिन is normally produced by what? It is normally produced by adrenal gland, only adrenal gland। मगर अगर मैं बात करूँ बेटा नॉरएड्रेनलिन की जिसको नॉरएपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, that is produced maximally by what? By the
sympathetic nervous system, and to some extent, only to some extent, it is also produced by this adrenal medulla. Okay, third difference is that if we look towards the noradrenaline normally acts, it acts in the normal conditions, ये normal conditions में act करता है. लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा एड्रेनलिन की, जिसका दूसरा नाम है बेटा दिस व्हाट वी कॉल द एपिनेफ्रीन, वो इमरजेंसी सिचुएशन जब राइज होंगे उन कंडीशन में बेटा ये हार्मोन जो होता है ये काम करता है. Now these are certain important functions of both these hormones. लेकिन फर्क यही है, आपका एड्रेनलिन जो है वो बेटा नॉर्मल कंडीशंस में काम करेगा, जो नॉर एड्रेनलिन होगा वो जो है बेटा जैसे नॉर एड्रेनलिन की मैं बात करूं वो कब काम करेगा, इमरजेंसी सिचुएशंस में. तो फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं दिस व्हाट वी कॉल एज अ रेट ऑफ हार्ट बीट. देखिए बेटा, they increase the rate of the heart beat. जब हार्ट बीट इंक्रीज होगी, कॉमन सेंस है, हार्ट बीट का मतलब क्या हुआ, जब हार्ट बीट इंक्रीज होगी तो ब्लड जो है इट विल बी क्विकली पंप्ड फ्रॉम द हार्ट. ठीक है बेटा, हार्ट बीट का मतलब ये हुआ 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल. ठीक है बेटा, सिस्टोल का मतलब ये हुआ जब हार्ट के चेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डायस्टोल का मतलब ये हुआ जब हार्ट के चेंबर्स रिलैक्स कर जाते हैं. सेकंड, कार्डियक आउटपुट, वही मैं बोल रहा था, कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या हुआ. Cardiac output is a parameter that means how much amount of blood is being pumped by ventricle. एक मिनट में कितना ब्लड आपका हार्ट बाहर निकालता है उसको बेटा बोलते हैं कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट is equal to rate of heartbeat into stroke volume. That is better called as a stroke volume. Okay beta, then it also increases what BP, that means blood pressure. Okay, then it also increases sugar level. ठीक है बेटा, by stimulating which process, by stimulating a special process, and that process called glycogenolysis. वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा था. ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, जब आपका ग्लाइकोजन जो है, जो बेटा एक पॉलीसेकेराइड होता है, जब ये कन्वर्ट होता है किस में बेटा, जब ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, उस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस. कहां पर ये करता है बेटा, लिवर में. फिर ये इंक्रीज करता है बेसल, दोनों हार्मोन्स इंक्रीज करते हैं बेटा बेसल मेटाबॉलिक रेट. बीएमआर का मतलब ये हुआ कि the minimum amount of calories that are required by an organism to function properly, that is actually called as the BMR. The BMR को मेंटेन करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह. That is better called as a thyroxine, which is produced by a special gland, that is better called as a thyroid gland. So it also increases the rate of respiration. It also leads to the dilation of the trachea. It also increases lipolysis. अभी मैंने breakdown of the fat. ठीक है. It also leads to the dilation of the pupil. It also increases blood supply to the heart. Heart को ये blood supply increase करता है. जो बेटा skeletal muscles होते हैं उनमें भी ये बेटा blood supply को increase करता है. सीधी सी बात है बेटा with regard to the brain. By acting as what? By acting as vasodilators. Vasodilators का मतलब क्या हुआ, ये हमने कई बार डिस्कस किया है. इवन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो हमने चैप्टर डिस्कस किया उसमें हमने बहुत जगह डिस्कस किया. एक होता है वासोकंस्ट्रिक्शन और दूसरा होता है बेटा वासोडाइलेशन. वासोकंस्ट्रिक्शन का मतलब ये हुआ नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स. जब ब्लड वेसल नैरो होती है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा. वासोडाइलेशन का मतलब ये हुआ जब ब्लड वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज होगा. जब ब्लड वेसल्स डायमीटर इंक्रीज होगा तो कॉमन सेंस है प्रेशर जो ब्लड का होगा वो बेटा डिक्रीज होगा. तो ये एक्ट करते हैं क्या, ये एक्ट करते हैं एज वासोडाइलेटर्स भी. लेकिन ख्याल रहे ये एक्ट करते हैं ऑल्सो एज वासोकंस्ट्रिक्टर्स भी, दोनों. ठीक है. तो और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस with regard to both these hormones. Another is that they cause a special term that is called gauze flesh. Gauze flesh का मतलब क्या हुआ, बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, उनको बेटा बोलते हैं एरेक्टर पिलाई मसल्स. तो उनको ये बेटा कॉन्ट्रैक्शन करते हैं. गोज फ्लेश का मतलब क्या हुआ, जब बम्प्स अपीयर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब किसी को ज्यादा सर्दी लगती है, ठीक है बेटा, जब किसी को ज्यादा मतलब एक्साइटमेंट होता है या कोई ज्यादा डरता है तो उसकी वजह से स्मॉल बम्प्स अपीयर होते हैं इस स्किन पे. दैट इज एक्चुअली टर्म दैट इज कॉल्ड बेटा गोज फ्लैश, एंड दिस गोज फ्लैश इज कॉज्ड बाय
these special hormones that are produced by the cortex of adrenal gland. This term is called बेटा goes flash. Okay, वही मैंने इधर लिखा है बेटा कि ये दोनों जो है ये resemble करते हैं with each other, but the difference is that आपका नॉरएपिनेफ्रिन जो है, नॉरएड्रेनलिन जो है, ये एक्ट करता है in the normal conditions, while as जो बेटा आपका एड्रेनलिन होता है वो एक्ट करता है in the emergency situations. That is why this adrenaline is actually called as the 3F hormone. यही एक्चुअल में होता है क्या, इसी को बेटा बोलते हैं 3F हार्मोन, दैट मीन्स फाइट, फ्लाइट एंड फियर. ओके, थैंक यू.